Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about MS Word in our syllabus. Okay, so here in today's class I'm going to discuss the formatting of the document. How you format your document, which I already discussed in my previous classes also. Okay, so let's get started. How to format document. So this is my MS Word, okay, interface. Here you can see all the things which I discussed earlier also. This is my title bar, okay, and there's a no, okay, there's a document 1 is written here in the title bar, okay. So if you want to change the title bar name, okay, so you can change, okay. How to change it? Just need to save your document. First go to a save or save as, any option you can go, okay. So first you have to go to save. When you save it, the next dialog box come. This dialog box known as save as dialog box, okay. So here you are going to store your data in the class 9th folder, right? Already a data is present here, right? My data. So here I'm going to write the name here. My file name is maybe my new data, okay. My new data, it will be my, maybe it by my file, okay, and then save it. I saved this my file here, and I'm going to start how to format your document, okay. So before to format, you have to write a text first, okay. So you know how to enter a predefined text in the document, okay. I discussed it in my previous class, or sorry, previous video also. So let's see. First of all, I'm going to change the font size through which you able to understand and able to see the proper text here, okay. The last time some student asked me about the these difficulties, because sometimes some video is not so clear, so it's difficult to understand. So here I'm change my font size here, okay. Now first of all, I have to write some text here. So for that I'm going to put a formula equal to RAND bracket 5 comma 5. Yes student, either you can put 10 comma 10 or 5 comma 5. When you enter it, you will get the predefined text here. So there no need to type, okay. There no need to type here. So I am going to remove my other text here, right. I just want only one page and one paragraph, okay, for the formatting. And here I am going to make another paragraph with the help of this, okay, method. I'm going here to make two paragraph, okay. This is my two paragraph. Now first of all, I need to change the case here. How to change the case here? For that you need to select the paragraph first and change the case, change case, which present in home tab. So before you to go ahead in my further tools, okay, in MS Office or MS Word, I just want to tell you one thing. Beta, you have to remember the tool present in this, okay, this interface. You have to understand this interface, and you have to know, you have to keep in mind where the tool is available for formatting, okay, for highlighting, for bullet and numbering. Suppose if you want to make a table in a document, so you have to go in the insert tab and you have to choose a table. So this table tool is present in insert tab. Similarly, if you want to make watermark, there's watermark present in page layout tab, and in the page ground group the watermark is present. Page color also present in page background. Similarly, in insert, the word art option also there, okay. So you have to keep in mind about the tool where it is present now in the MS Word tool, okay. So it is very important. So here I am going to show you how to
change the case of paragraph. So first of all you have to select, okay, and go to the change case option. Here sentence case, lower case, upper case, capitalize each word and toggle case. ठीक है, I discussed earlier also. Now my paragraph is in sentence case because in my first sentence, which is start from here and ending here, okay, in this first sentence, in the first word the first letter is capital. ठीक है, सो ये मेरा क्या है, एक सेंटेंस केस में है. अब इफ यू वांट टू चेंज द केस, यू जस्ट क्लिक ऑन सेंटेंस केस एंड क्लिक ऑन हियर. ठीक है, सो इफ यू वांट टू change the paragraph in lower case, entire paragraph in lower case, you can choose lower case. ठीक है, now if you want to change the case upper case, you can choose upper case. All the word comes here in upper case. Similarly, and capitalize each word means on first word of the first letter of the first word will be capital. Means यहाँ पे देखिए on में O, the में T, insert में I, tab में T, okay, गैलरीज में G, यहाँ पे क्या है, कैपिटल है. यानी कि हर एक वर्ड जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा. तो उसके लिए जो केस हमारे पास क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड. ठीक है, अपर केस में क्या होता है, सारे के सारे वर्ड, सॉरी, जो जितने कैरेक्टर सब अपर केस में हो जाएंगे. लोअर केस में सभी क्या हो जाएंगे, लोअर केस में. ठीक है, अब इसी तरह से हम कैपिटलाइज ईच वर्ड में जाते हैं. अब इसी के बाद आप चाहते हैं कि हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो, स्मॉल में हो, तो यहाँ पे क्या करें, क्लिक करेंगे और टॉगल केस क्लिक कर देंगे. यहाँ पे देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो गया, स्मॉल केस में हो गया. तो ये आपने देखा. इसके बाद बेटा हम देखने जा रहे हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. अभी जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है इसमें हटाना है इसको, तो कहां पे जाएंगे, वापस से क्लियर फॉर्मेटिंग पे. ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग हट गई, क्योंकि हमारा फॉन्ट साइज, अच्छा देखो फॉर्मेटिंग हट जाएगा लेकिन हमारा जो केस है वो एज इट इज है. तो चलिए उसको सेंटेंस केस में बना देते हैं. क्लिक करते हैं, सेंटेंस केस में हो गया. और जो भी साइज इसका है, इस पैराग्राफ का, यही साइज इसका होना चाहिए, इस पैराग्राफ का होना चाहिए. कैसे करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मेट टैब प्रिंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे क्या किया हमने, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया. तो जो भी केस सेकंड वाले पैराग्राफ, जो भी फॉन्ट साइज सेकंड वाले पैराग्राफ का था, वही फॉन्ट साइज किसका हो गया, पहले वाले पैराग्राफ का. अब हम बेटा देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. जैसे कि अगर मुझे लिखना है एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमको इस तरह से लिखना है, तो ए स्क्वायर कहां पे, ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, इसको स्मॉल केस में लिख सकते हैं. स्मॉल में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आपने यहां पे लिखा ए स्क्वायर, स्मॉल केस में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, ए कैपिटल में स्क्वायर, और इसका केस चेंज करते हैं. कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से केस लोअर केस में कर देंगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ए स्क्वायर, अब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, नाउ प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब देखो यहाँ पे स्क्वायर में जो है वो साथ में लिखा है, ए के साथ, हम चाहते थोड़ा ऊपर आए, तो क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, और फिर यहाँ पर इसको भी 2 को सेलेक्ट करेंगे, देन सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे. ठीक है, अगर आप साइज बढ़ाना चाहे साइज बढ़ा दीजिए ताकि वो आपको आसानी समझ में आए. ये देखिए समझ में आ रहा है. ठीक है, यहाँ से भी इसको साइज बढ़ा देते हैं. ठीक है, और इस पूरे का साइज बढ़ा देते हैं. तो ये देखिए फॉन्ट साइज, ठीक उसी तरह से हमको अगर लिखना है H2SO4 ये लिखना है, तो 4 को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पे नहीं, इस बार सबस्क्रिप्ट पर हम क्लिक करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट पर. अब देखो सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, और सबस्क्रिप्ट का क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू. ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, सब क्लिक किया 4 को, और इस बार हमने सबस्क्रिप्ट पर क्लिक किया तो 4 नीचे आ गया. ठीक, उसी तरह से 2 को यहाँ पे क्लिक किया और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो 2 नीचे आ गया. ठीक है बेटा, तो आपने देखा अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट, और अगर नीचे लिखना है तो, ठीक है, तो हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं. इसको हटाना है पूरा,
क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो क्लियर फॉर्मेटिंग से हट गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बाद आता है इंडेंटिंग पैराग्राफ। ठीक है, इंडेंटिंग पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ठीक है, सपोज दिस इज माय न्यू टॉपिक अबाउट MS Word, it helps us to make document for office, maybe ऑफिस वर्क में भी हमने यहाँ पे एक सिंपल स्टोरी। अब यहाँ पे देखो रेड लाइन क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। ये वर्ड के बाद हमने जो फुल स्टॉप दिया है और उसके बाद हमने इट लिखा था, इट दोनों में बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है वर्ड के बाद आपको इट ऐसे लिखना है। ठीक है, सो अभी देखिए पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप चाहते हैं पैराग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट हो, तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे इंडेंट राइट पे यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट क्लिक करेंगे आप, तो देखिए शिफ्ट हो गया। ठीक है, जितना आप शिफ्ट करेंगे आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। अब वापस आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, देखो एक ग्रीन कलर का लाइन अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पे कैसे इसको सही करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे आई को कैपिटल कर देंगे, हो गया डॉक्यूमेंट, वापस ग्रीन कलर आ गया डॉक्यूमेंट फॉर। ठीक है, ऑफिस वर्क। अब हम जब भी यहाँ पे नेक्स्ट नहीं, इट हेल्प्स है ना, यहाँ पे जो क्या होगा, इट हेल्प्स नॉट हेल्प, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपके सेंटेंस में है तो भी आपको सही यहाँ पे कट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो देखिए आपका जो नेक्स्ट जो कर्सर है वो सीधे वहीं पर आए जहां से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आपको इंडेंट कम करनी है तो यहाँ पे जाइए, आपको वापस से जहां पहले पोजीशन थी आप इंडेंट वहीं पे रख सकते हैं। इस तरह से हमने देखा जहां से भी आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। चलिए यहाँ से एक और हम कर लेते हैं, पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया या यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे क्या किया, इंडेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे गए इसको किया, ये पैराग्राफ हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये पैराग्राफ हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इसको और आगे जाना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट कर। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे कर्सर एंटर करेंगे तो आपका कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। देखिए जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्पेशली जब हम पोएम वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए हमको कर्सर लिखना पड़ता है। देखिए आपका कर्सर यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंडेंट सीखा। ठीक इसी तरह से हमने क्या किया, पैराग्राफ को कम करना है, इंडेंट कम करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, आगे वापस से यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, बैक, वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैक पे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक, यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ जैसा था वैसा बन जाएगा। डिलीट स्टेटमेंट या डिलीट कीवर्ड आपको प्रेस करना पड़ेगा। वर्क के बाद हमारा वर्क के बाद ऑन कैपिटल होना चाहिए तो आपका कैपिटल आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है इंडेंटिंग पैराग्राफ के बाद जो हमारे पास है अलाइनमेंट ऑफ ए पैराग्राफ। इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ अलाइनमेंट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपका एक लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आप जूम हो गया, देखिए अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो जो आपका अलाइनमेंट है देखो बेटा क्या दिखा रहा है, लेफ्ट दिखा रहा है। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एल। ठीक, सेंटर के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस ई। राइट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस आर। एंड जस्टिफाई के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई में क्या होता है, जितने भी स्पेस होते हैं एक लाइन के बीच में वो एडजस्ट हो जाते हैं लाइन के अंदर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अभी लेफ्ट है, राइट करने के मतलब क्या है, राइट में किया तो जब भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम आप कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए। लेकिन अगर आपने इसको क्या किया, आपने अगर अलाइनमेंट क्या किया, लेफ्ट किया है, इसका मतलब क्या, अब जब भी नेक्स्ट लाइन आपकी स्टार्ट होगी कहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी। देखिए ये नेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रही लाइन आपकी, लेफ्ट अलाइनमेंट हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसके बाद क्या है, जस्ट सेंटर। अगर आपने सेंटर पे किया, सेंटर पे क्लिक किया तो जो आपकी न्यू लाइन होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, सेंटर से स्टार्ट हो रही है। देखिए
सेंटर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, जस्टिफाई, हाँ सॉरी, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ठीक है, अब जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, जितना भी अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस, इस यहाँ तक आप वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, मेक के बाद ये स्पेस छूट गया है, फिर यहाँ पे देख गैलरीज के बाद इतना स्पेस छूटा हुआ है, फिर ओवरऑल, फिर इंसर्ट के बाद जो स्पेस अभी तक छूट गया है, इट्स लेफ्ट नाउ, तो उसको हम फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, जितने भी हमारे पैराग्राफ की जो लेंथ है, ठीक है, उसको जितने भी वहां पे स्पेस है फ्री हो रहे हैं, उसको जस्टिफाई करके फिल कर देगा। देखो अब देखो, जितना भी हमारा लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो भी हमारे पैराग्राफ थी, इंडेंटेड थी, ठीक है, उसको हमने क्या किया, फिल कर दिया। तो जो गैप आ रहा था स्पेस का, वो गैप हमारा स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, जब आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, जब आप करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये आपका क्या दिखाएगा, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये आपका लेफ्ट दिखा रहा है पैराग्राफ, और ये क्या दिखा रहा है, जस्टिफाई दिखा रहा है। ठीक है, तो पैराग्राफ आपने देखा। इसके बाद बेटा क्या है यहाँ पर, पैराग्राफ का बैकग्राउंड। ठीक है, पैराग्राफ बैकग्राउंड कैसे सेंड करेंगे, यहाँ से देखिए कहाँ पे आपको पैराग्राफ बैकग्राउंड मिलेगा, यहाँ से आपको पैराग्राफ बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी आप बैकग्राउंड चाहते हैं पैराग्राफ का, आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने ये कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई और कलर चाहते हैं तो वो भी कलर हो जाएगा। आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दिया पैराग्राफ का, कोई भी कलर आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का क्या है, बैकग्राउंड कलर हो गया है। ठीक, इसी के बाद क्या है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखना है वो हमें देखना है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है बेटा, सपोज हमने यहाँ पे कुछ लिखा, सिटीज, सिटीज, ठीक है, एंटर की। अब सिटीज में हमने क्या लिखना है, सपोज सिटीज में हमने लिखना है कानपुर, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, वाराणसी। ठीक, अब सिटीज में हम चाहते हैं कि सिटीज के में बोल्ड हो, थोड़ा सा फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो, थोड़ा अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो कानपुर, इलाहाबाद और जो वाराणसी हमने लिखा है, इसमें एक लिस्ट की तरह ये डिस्प्ले करे। कैसे करेगा, इसके लिए हमारे पास दो तरह के लिस्ट है, एक है ऑर्डर लिस्ट और एक है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर का मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आएंगे, ABCD 1 2 3 4, ठीक है, और फिर कैपिटल ABCD आ सकते हैं, या फिर रोमन डिजिट में आ सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं कोई स्पेसिफिक इमेज आए लिस्ट में, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है बेटा, अनऑर्डर लिस्ट में कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं आता है, वहां पे या तो आपका सर्कल आएगा, या तो आपका डिस्क आएगा, या तो स्क्वायर आएगा, या कोई स्पेसिफिक सिंबल आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं बुलेट्स में। बुलेट्स में क्या होता है, बुलेट्स में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता, आपको इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, ये सारी इमेजेस हैं छोटी छोटी। ठीक है, आपको ये बुलेट्स, इसको बोलते हैं बुलेट्स। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहां से हमने बुलेट्स ले लिया। अगर आप चाहते हैं बुलेट्स नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिक नंबर चाहिए, तो आप नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक नंबर मिल जाएगा। 1 2 3 मिल गया, 1 2 3 के बाद ब्रैकेट आ गया, फिर कैपिटल में है, फिर स्मॉल में है, यहाँ पे देखो रोमन में है, ठीक है, स्मॉल रोमन में है, तो इसको बोलेंगे आपका नंबरिंग। ठीक है, ये कोई भी स्पेसिफिक नंबर में आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये चूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा सिटीज के बाद है, एंटर किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ। ठीक है, अब एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट। अब स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग होगी तो नहीं, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग रॉन्ग सही है, LUCKNOW, लखनऊ सही है, लेकिन क्योंकि डिक्शनरी में नहीं है, इस वजह से हमको यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं ये आपको ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वापस जाकर इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब यहाँ सिटीज के बाद सपोज हमने यहाँ पर स्टेट दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा क्या, स्टेट, स्टेट्स। ठीक, और चाहते जो भी इसका फॉर्मेटिंग वही स्टेट इसको भी मिल जाए, स्टेट्स को मिल जाए, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दिया, आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे जो नंबरिंग हो, ठीक है, यहाँ पे जो नंबरिंग हो वो क्या हो, जैसे सपोज स्टेट में हमने यहाँ पे लिख दिया उत्तर यूपी, ठीक है, यूपी लिख दिया, MP, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो
इस तरह से हमने लिखा। अब चाहते हैं जो भी हमारा ये जो हमारा फॉर्मेटिंग है, यही फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर देनी है, किस पर, इस पे अप्लाई कर देनी है। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, हमने कर दिया, हो गया। अब देखिए 5 6 7 8 हम नहीं चाहते यहाँ पर ये आए, हम चाहते हैं क्या, कुछ और आए। तो वापस से जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ABCD XYZ कुछ भी लेते हैं, या फिर बुलेट नंबरिंग ले लेते हैं। चलिए हमने बुलेट ले लिया, यहाँ पे हमने बुलेट चूज कर लिया, डिस्क। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या, बुलेट एंड नंबरिंग, या इसको बोल सकते हैं लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बॉर्डर आता है। ठीक है, तो बॉर्डर पे देख लेते हैं बॉर्डर कैसे हम लोग हेल्प करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें से हमको क्या करना है, इस पैराग्राफ से बैकग्राउंड पीछे का जो है अभी हटा देते हैं। हटा दिया इसको यहाँ से बैकग्राउंड, क्लिक किया, कहां से, यहाँ पे गए, और यहाँ पे हमने क्या, नो कलर। ठीक है, नो कलर पे किया। हम चाहते हैं इसके आगे, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाए, तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, और कहाँ पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर या आउटसाइड कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे क्या, आउटसाइड बॉर्डर, या उसको आउटलाइन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब बॉर्डर का शैडो है। यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पर ये बॉर्डर के डिफरेंट क्या है, बॉर्डर एंड शेडिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग बॉर्डर के टाइप मिलेंगे। जैसे बॉक्स मिल गया, 3D या 3D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर का आपको थिक करना है तो यहाँ से थिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कलर करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपने रेड कलर ले लिया। ठीक, चलिए हमने ये थोड़ा सा मोटा कर दिया, इसको ओके कर दिया। तो देखिए आपका जो बॉर्डर है आ गया चारों तरफ। ठीक है, तो बॉर्डर शेडिंग में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको बेटा ये याद रखना है कि ये जो बॉर्डर टूल है वो कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, किस ग्रुप के अंदर आ रहा है, ये में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिफाइनिंग बॉर्डर बैकग्राउंड भी हमने देखा, स्टाइल है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर क्या होता है बेटा, जैसे कि आप देखते हैं आपके बुक में एक नीचे पेज नंबर दिया होता है, और चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, चैप्टर का नेम दिया होता है। ठीक है, तो जिससे आप वो कैसे लिखा जाता है, वो हमारे हेडर एंड फुटर से उसको सेट करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी कि हर डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट, या फिर एक स्लोगन, या फिर चैप्टर नेम, ठीक है, या और हर डॉक्यूमेंट के हर एक पेज के एंड में, ठीक है, आपका पेज नंबर आना चाहिए, या फिर आपका कोई स्लोगन आना चाहिए। तो उसके लिए आपको हेडर एंड फुटर यूज करना होता है। ठीक है, और हेडर फुटर आपको कहाँ मिलेगा वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट में जाएंगे आप। इंसर्ट में आपको देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर मिल रहा है, तो आप हेडर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या मिल जाएगा, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे हमने टाइटल को टाइप किया। हमने यहाँ सिंपल सा एक मैसेज दिया, अबाउट MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, अबाउट द वर्ड डॉक्यूमेंट हमने ये बॉर्डर दे दिया। ठीक, तो हमारा ये जो बॉर्डर है, हम करें, हमने क्या किया, इसको हेडर दे दिया। अब हेडर को हमको क्या कहे, थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कोई कलर चाहते हैं आप, कोई कलर कर दीजिए, इसको रेड में, ग्रीन में, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद मेनी थिंग यू कैन, ठीक है, डू विद हियर, या कोई फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो हमने ये कर दिया। अब इसी के बाद हम चाहते हैं कि यही ये हमारा जो हेडर है वो हर एक पेज पे आए। देखिए आप जब पेज को सेकंड पेज पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप जितना भी पेज यहाँ पे ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, हर एक पेज पे आपको ये क्या दिखेगा, ये ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, कहाँ पे गए, इंसर्ट पे गए, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। ठीक है, तो पेज नंबर तीसरे पे आपको, थर्ड पेज पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये तीसरा पेज भी आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हेडर। अब इसके बाद क्या, फुटर आता है। फुटर के लिए हम क्या करेंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे, एंटर किया, कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पर फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देंगे आपको। क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, पेज नंबर एंटर करना है, डेट एंड टाइम या टेक्स्ट एंटर करनी है, पेज नंबर एंड टेक्स्ट टाइप करना है, तो हम दोनों ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया,
यहाँ पे हम चाहते हैं पेज नंबर हमारा डिस्प्ले करे, टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल अपना नाम लिख देते हैं हम, ठीक है, या फिर स्कूल का नाम प्रयाग पब्लिक स्कूल। अब पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक किया। चलिए अभी क्या है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड भी करते हैं, है ना। सिलेक्ट करने के बाद क्या किया हमने, होम पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक, या छोटा, हालांकि फॉन्ट बहुत छोटा ही रहता है फुटर पे, ठीक है, और यहाँ से हमने कलर कोई कर लिया, कोई स्पेसिफिक कर ले लिया, हमने ब्लू कर दिया, रेड कर दिया, कुछ भी कर सकते, रेड कर दिया, चलिए, ठीक। अब ये देखिए, अब ये जो प्रयाग पब्लिक स्कूल है, ये आपको हर पेज पे आपको मिलेगा, देखिए दूसरे वाले पेज पर भी आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर का यूज उन्होंने देख लिया, और ये हेडर फुटर कहाँ मिलेंगे आपको इंसर्ट टैब के अंदर कहाँ मिल रहे हैं, ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन में मिल रहे हैं, ठीक। यहाँ से आप पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं, टॉप द पेज, बॉटम द पेज, मेनी थिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या है, ये हमने देखा क्या बेटा, हेडर एंड फुटर देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैसे हम किसी इमेज को, ठीक है, कैसे हम किसी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो देखिए। सपोज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जो सेकंड पेज हमारे पास, यहाँ पर हमको एक इमेज चाहिए, ठीक है, तो हम इमेज कहाँ से लेंगे, हमको एक इमेज चाहिए, तो हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, अभी होम पे हैं, कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में, और यहाँ पर क्या है, पिक्चर, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कहीं भी स्पेसिफिक पिक्चर में जा सकते हैं या फिर कैमरे में जा सकते हैं, कहीं पर जहां पर आपकी पिक्चर हो वहां पे क्लिक करिए, ठीक है। सपोज मेरी जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स में ही है, माई इमेज मैंने रखा हुआ है, और यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक इमेज हमने यहाँ पे उठा ली एंड इंसर्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके एक सिंपल सी पिक्चर आ गई, ठीक है। इस पिक्चर का हाइट एंड विड्थ आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कर, आप पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है, पिक्चर को किसी भी शेप में कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्राइटनेस है पिक्चर को, है ना, पिक्चर का ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ठीक है, ये सब कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को, डिफरेंट आपके बॉर्डर हैं वो आपको पिक्चर में ऐड लगा सकते हैं, ठीक है, पिक्चर को, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए आपको बहुत सारे पिक्चर टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। इसी की तरह से अगर आपको यहाँ पर पिक्चर के साथ थोड़ा सा पिक्चर का साइज छोटा रखना है, आप छोटा कर दिए। अब इसके बाद आपने क्या किया कि पिक्चर के साथ आपका टेक्स्ट भी लिखे, तो आपने क्या लिखा, सिंपल इक्वल टू RAND ब्रैकेट किया 10 कॉमा या 5,5 किया 5,5। अब आपके पास क्या आ गया, कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आया, इक्वल टू RAND, ये देखिए टेक्स्ट आपके पास आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए टेक्स्ट आ गए। अब आप चाहते थोड़ा टेक्स्ट जो हो उसका जो सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को आपने क्या किया, जो इसका बोल्ड एंड इटैलिक उसको हटा दिया, इसको भी बोल्ड हटा लेंगे, ठीक है। अब आप जाएंगे अपने टेक्स्ट पे, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक। आप पिक्चर की पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं तो भी आपको कहाँ मिलेगा, पिक्चर टूल पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो राइट में, टॉप पर, कहाँ पे चाहते हैं आप, तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर पोजीशन किया, और ये आपको जो टेक्स्ट है यहाँ पे लिख के जो आ रहा है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, फॉन्ट का साइज 24 है, हमने क्या किया 20 कर दिया, और फिर देखते हैं हमारा प्रॉपर हमारे पास आया है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास देखो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, आपको बस खाली ये ध्यान रखना है कि जो टूल्स है वो किस जगह पे हैं। जैसे पेज लेआउट में बहुत सारे टूल्स हैं, तो ठीक है, वो सब चीज देखनी, होम पे क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ पर होम पे क्या क्या टूल अवेलेबल है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। होम पे क्या क्या है, फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, ठीक है, फाइंड रिप्लेस एडिटिंग टूल है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पिक्चर के बाद बेटा ये जो आपका सेशन है, यानी कि चैप्टर नंबर सेशन नंबर 3, सेशन नंबर 4 आई थिंक, ठीक है, सेशन नंबर 3 ये आपका कंप्लीट होता है, और सेशन 4 फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।
चलिए अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क क्या है बेटा आपका? होमवर्क में आपको करना क्या है, आपको पेज नंबर दिए गए हैं, ठीक है। आपको पेज नंबर बता देता हूं मैं, पेज नंबर 111, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिया गया है, सेल्फ असेसमेंट दिया गया है बेटा। ये सेल्फ असेसमेंट दिया गया है। इस पेज नंबर 111 पर आपको सेल्फ असेसमेंट दिया गया है सेशन नंबर 3 का, जो जिसमें आपको एमसीक्यूज हैं। पहला क्या आपका है, उसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यूज हैं, और जो दूसरा है वो है आपका शॉर्ट आंसर। ये दो क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज मिलेंगे और शॉर्ट आंसर मिलेंगे। ये आपको होमवर्क में करना है बेटा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक। तो होमवर्क में आपको ये करना, पेज नंबर 111 पर सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर। इसके अलावा भी जो जिनके पास कोई दूसरी बुक है या पुरानी बुक है, तो उसमें भी आपको डिफरेंट पेज नंबर पर सेम क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, और सेल्फ असेसमेंट नाम का आपको टॉपिक यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिलेगा। तो आपको वो कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग एंड यूज टेबल, ठीक है। जो सेशन नंबर हमारा 4 है उसको भी हम देखेंगे। Now student, I am going to show you the next thing here, how to create table in our document. So for this you have to go to the insert tab, okay, insert tab, and the insert tab you will see the two group here. First two group, page group and the table group. Now you have to choose table group. Now in the table group you have to select, click on the point, okay, this point, and automatically you will see the table rows and table column will select it, okay, coming here. When you select the square you will get the table row and the table column, okay. Now here I am going to select 2 row comes, 3 row, 4 row, 5, 6, 7, 8. When you click on here you will get 2 column, 3 column, 4, 5, 6 and so on, okay. So this is very easy way to create a table. Similarly, if you want to do insert table, right, when you click insert table it will ask how many rows and column you required, okay. Now you can say number of column is 5 and number of row is what, 6, okay, and then okay. So you will get the table here. You can select the table and make its size bigger than previously, okay. So here through this table tool you can create table in your document, okay. So similarly you can put any number of record here. Suppose student id or something, employee id, okay, employee emp id, the employee name emp name, right, emp salary, employee department emp department, right, and date of joining emp date of joining doj. Maybe these are the columns. You can select the entire column first, and if you want to make it in a fix in a middle in the column you can click on home tab and click on center, right. तो आपने देखा कि जो टेक्स्ट है वो क्या सेंटर में आ गया, ओके. यू कैन मूव दिस लाइक दिस आल्सो, ओके. तो इस तरह से हमने देखा क्या, टेबल हमने कॉलम बना लिया। अब कॉलम के बाद आपको इसमें रिकॉर्ड एंटर करनी है, यू कैन एंटर रिकॉर्ड, ठीक है। तो हमने लिखा 101, 102, 103, 104, 105, राइट, दिस इज माय रिकॉर्ड। सिमिलरली आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो यू कैन change the font size also,
right? Now employee name Amit, Ravi, शिव, ठीक है, रानी, ठीक है, मे बी दिनेश. These are the name. Employee salary, you can set a salary also, 25,000, 30,000, ठीक है, 15,000 maybe, right? 18,000 and suppose 74,000. Department, you can set suppose IT, sales, okay, sales, IT maybe, sales or marketing, MRKT, and suppose admin, right? Date of joining, you can set any date also here, right? Now this is my column. So you, if you want to put all the text in the middle, now text comes in the middle. No, not in text, the table will come in the middle. Select the table first, value here, and then click on middle. Yes, you will get. ओके, तो जो भी आपकी वैल्यू है वो कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई. सिमिलरली यहाँ पर आपने क्या देखा कि कैसे आप टेबल को इंसर्ट करते हैं. एक ये तरीका हो गया. दूसरा क्या तरीका हुआ आपका बेटा, आपने यहाँ पे गए इंसर्ट में, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आपका रिकॉर्ड या कॉलम टेबल बन सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका रिकॉर्ड हो गया बेटा. ये आपने क्या देखा कि यहाँ पे टेबल आ गया आपका. ठीक है, और किस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर क्या आपने देखा, ड्रॉ टेबल. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो टेबल का लेंथ और हाइट है ऑटोमेटिक सेट है. आप यहाँ से अपने हिसाब से टेबल का लाइन जो हाइट विड्थ है सेल की वो आप सेट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे गए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ऐसा पर बॉर्डर बना लिया टेबल में, कितने कॉलम चाहिए. ठीक है, ठीक, ये बॉर्डर कहां से आ गया, यहाँ पे गेट इंसर्ट टेबल में ड्रॉ टेबल, और ये हमने क्या किया, ये लाइन खींची, पहले लाइन, फिर ये हमारा दूसरा टेबल हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, हमने यहाँ चाहते हैं, और तीसरा कॉलम थोड़ा छोटा चाहते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने अपने टेबल अपने नीड के अकॉर्डिंग हमने टेबल को डिजाइन कर लिया. ठीक, इस तरह टेबल हमने बना लिया. तो किसके लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और ड्रॉ टेबल पे जाएंगे बेटा. ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास टेबल आ सकते हैं. वो कैसे आएंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमको अगर एक और टेबल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल सीट या फिर क्विक टेबल. क्विक टेबल का मतलब क्या, पहले से हमारे पास क्या है, ये हमारे इनबिल्ट टेबल दिए गए हैं, इसको सिर्फ खाली कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे पास टेबल आ जाएगा. जैसे कि कोई एक देखते हैं, हमको ये टेबल चाहिए, तो ये टेबल चाहिए, इसमें क्लिक किया, देखिए हमारे पास टेबल रेडी है. बस हमने क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, इसको एडिट कर देना है बस खाली. ठीक है, इसको क्या करना है, एडिट कर देना है. हमारे पास टेबल ऑलरेडी है और हमको क्या करना है, इसमें कुछ एडिट करना है, अपने हिसाब से टेबल को बना लेंगे. ठीक है, ये कहाँ पे आएंगे, क्विक टेबल में आएंगे. ठीक, उसी तरह से अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए प्रॉपर, तो आप कैसे लेंगे, कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे और क्लिक ऑन द टेबल, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेल शीट मिल जाएगा. तो ये हमारे कुछ तरीके हैं, दिस इज मेथड टू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट. नाउ आफ्टर बेटा इसके बाद हमें क्या देखना है कि मान लेते हैं अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम को मर्ज करना है, जैसे मान लेते हैं हम इसके ऊपर हमने वापस से कहां पे जाते हैं, इसके ऊपर एक मुझे और रिकॉर्ड चाहिए. क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट. अब यहाँ क्या पूछ रहा है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट
इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। हमने कहा रो अबव, इस पे क्लिक किया तो देखिए एक रो ऊपर आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे रो किसको डिस्प्ले करे, एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे ऑप्शन है आपका मर्ज सेल। ठीक है बेटा, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे जो इतने रोज हैं, सॉरी जो मेरे सेल्स है मर्ज हो जाएंगी और आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो सेंटर में लिख कर आएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने ये लिखा तो सेंटर में लिख के आ रहा है। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते, साइज का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ कलर चेंज करने हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको येलो कर दिया, इसका जो बैकग्राउंड कलर है सेल का वो भी आपने चेंज किया, वो आप कहाँ से यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको कलर चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि कैसे हम टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं और कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं वो है कि कैसे अगर मान लेते हैं हमको इसको प्रिंट करना है, इस टेबल को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, या हमको टेबल को रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव करेंगे। तो चलिए इसको छोड़कर बाकी जो हमारे ये वाला टेबल है उसको हमको रिमूव करना है। हम टेबल टूल पे जाते हैं, टेबल टूल पे इरेज टेबल यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, इरेज टेबल पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ ड्रॉ टेबल भी है, यहाँ पे इरेज टेबल भी है, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन क्या करेंगे, यहाँ से हमने सभी को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। सिमिलरली इसको रिमूव करना है, सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करना है, जाते हैं यहाँ से और इसको पूरा रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमारा टेबल अभी रिमूव हो गए। वापस से जाते हैं कहाँ पे, टेबल टूल इंसर्ट पे जाएंगे, ऑप्शन है न्यू पेज, ब्लैंक पेज ले लिया हमने। तो ब्लैंक पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पहला हमारा पहला टेबल है, पहला वाला पेज है, दूसरा पेज। अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना। ठीक है, कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपको ऑप्शन आपको हेल्प करेगा प्रिंट पेज का। कैसे प्रिंट कैसे करना है, इसके लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ऑप्शन आपके ऑफिस बटन पर। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा प्रिंट। अब देखिए प्रिंट में यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्विक प्रिंट है और प्रिंट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट में सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से आपको प्रिंट दिखेगा, कैसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका प्रिंट पेज है। तो यहाँ पे टोटल कितने पेज है, 2 पेज है, पहला पेज ये है, दूसरा पेज नेक्स्ट करेंगे तो आपको दूसरा पेज दिखेगा, ब्लैंक है। ठीक है, प्रीवियस पेज पे जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा, आपको इस तरह से दिख रहा है। वापस जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, ऑफिस बटन पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम जाते हैं एंड प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गए। ठीक है, क्लोज किया। अब अगर हम जाते सिर्फ खाली प्रिंट पर तो क्या होता है, हम प्रिंट पे जाते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखता है। अब डायलॉग बॉक्स क्या बता रहा है, डायलॉग बॉक्स में आपको बताना है कि जब करंट टोटल कितने पेज है, 2 पेज है, आपको कितने पेज चाहिए, सिर्फ खाली 1 पेज चाहिए तो आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, आपको सिर्फ खाली 1 ही पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, या ऑल करेंगे तो दोनों पेज आपको निकल के आए। करंट का मतलब जो पेज सेलेक्ट होगा सिर्फ खाली उसी का प्रिंट आउट निकलेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज, यानी एक पेज जो आपने सेलेक्ट किया है उसे कितने नंबर ऑफ कॉपीज है, मैंने कहा 10 कॉपी चाहिए उसकी। ठीक है, मुझे 10 बच्चों को देना है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कॉपीज में कितने होंगे, 10 कॉपी। और कितना पेज निकालना है, 1 पेज निकालना है, किसका, जो पहला पेज हमने सेलेक्ट किया है उसी का। करंट पेज करेंगे इसका मतलब जो आपने सेलेक्ट किया, जहां पे आपका कर्सर रखा रहेगा, कर्सर रहेगा वही पेज आपका प्रिंट होगा। लेकिन आपने बोला आपको सपोज आपके पास 10-15 पेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में, आपने बोला कि पेज नंबर क्या चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, तो सिर्फ खाली 1, 3, 5, 7 पेज निकलेंगे। और उससे कितनी कॉपी बनेगी, यानी कि 4 पेज निकलेंगे यहाँ से, और कितनी कॉपी बन जाएगी, हर एक ग्रुप की 10 कॉपी बनेगी। ठीक है बेटा, और प्रिंट करेंगे तो ये ऑप्शन आपका प्रिंट कर देगा। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या देखा, कैसे हम पेज को अपने प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका था सेशन नंबर 3 और 4।